أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. سورہ بنی اسرائیل ہے، 17واں سورہ ہے، 17 سورہ کے نمبر. اور اس میں میں آپ کو 40 پر 8ویں آیت سے 4-5 آیتیں سنایا ہوں. اب اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے، دعوت کا مطلب بلانا، بلاتے، اللہ کی بات سمجھاتے اور دنیا کی حقیقت سمجھاتے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں اور مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. پھر وہاں ہم لوگ سب کو بھی اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینا پڑتا ہے، پوری زندگی کا حساب کتاب دینا. تو یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آتی نہیں تھی، تو بولتے تھے مرنے کے بعد پھر اٹھتی کیا؟ ہمیں معمول سے آدمی کے آنکھوں کے سامنے کیا تو بھی نظر آتا ہے، دستا ہے، تو وہ چیز کو جلدی بھروسہ کرتا ہے، مان لیتا ہے. ایک چیز نظر آتی نہیں، دستی نہیں، وہ چیز کو ماننا، بھروسہ کرنا ذرا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، آپ کو آدمی ایسا رہا تو اٹھ سکتا ہے، ان کا سوچنا. جب ہمیں دفن کرتی مٹی میں، قبر میں، تو آدمی مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی کھا لیتے پورا بھی، کیا بھی رہتا نہیں، پھر کیسا آتا ہے، پھر کیسا بنتا ہے، یہ باڈی پورا کیسا بنتی ہے، جسم پورا کیسا بنتا ہے. تو اس کے بارے میں آ کر ان کے شکوک و شبہات، ڈوٹا وغیرہ پوچھتے تھے. تو اس کے بارے میں بھی ہاں 2 باتیں اللہ تعالیٰ اس میں سمجھا. قرآن میں کئی جگہ ہے، ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، کئی جگہ ہے، کئی بار اللہ تعالیٰ سمجھا ہے، ایک جگہ الگ الگ انداز سے سمجھا ہے. اب یہاں جو باتیں ہیں سمجھانے کا طریقہ وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، ترجمہ سناتا ہوں. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. اے نبی آپ دیکھیے آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، تمہارے پیچھے جا کر تمہارے بارے میں کیا کیا بولتے ہیں. کبھی بولتے ہیں دیوانہ، نعوذ باللہ، کبھی بولتے ہیں پاگل، کبھی بولتے ہیں جادو ہو گیا ہے یہ آدمی کے اوپر، جناتوں کا جادو ہو گیا ہے، ان کے دیوی دیوتاؤں کا، تو اس کی وجہ سے آدمی بہکی باتیں کرتا ہے. بہکی کا تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کے لیے یہ لوگ مثالیں بیان کرتے ہیں. دیکھو کیسے کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس وہ غلط راستے میں جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے دل میں جو آ رہا ہے وہ بولتے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اب تو راہ پانا اس کے بس میں نہیں. تو اب سیدھے راستے کی آنے والے نہیں، انہوں سیدھے راستے کو آنے والے نہیں ہیں، انہوں اللہ کی بات ماننے کے لیے نہیں ہیں. اب یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، یہ اللہ کی بات، اللہ کی آیتاں. جب سنانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انہیں کیا سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا آیتاں، ہمیں سوچنا، سمجھنا اور اسے بھروسہ کرنا، اس پر عمل کرنا. اس کے بجائے انہوں کیا بولتے تھے، نہیں انہوں جو بولتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آدمی برابر نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے، پوچھتے تھے انہوں. تو ان کے جو ڈوٹاں تھے یا تو انہوں آپس میں بول لیتے تھے یا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی پوچھتے تھے. تو ان باتوں کا اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتوں کے جیسا اتار دیا. اب یہ قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں یہ کب کے، یہ 1400 سال پہلے کے نہیں، ہمارے پاس ہے 1400 سال سے.
हालांकि ये किताब अल्लाह ताला दुनिया को पैदा करने से 40,000 बरस पहले लिख कर रख डाला है। दुनिया में इंसानों को पैदा करे तो उन्हें कैसा बात करती हैं, क्या बोलती हैं, उनका डाउट क्या रहता है, उनके सवाल क्या रहती हैं, उनके जवाब क्या रहती हैं, ये सारा इल्म अल्लाह को है। तो इंसानों को आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से 40,000 बरस पहले अल्लाह ताला कुरान मजीद लिखा कर रख डाला है। कहाँ है? लौह महफूज में है, बड़ी किताब अल्लाह के पास है, उसमें यह है। तो उसके बाद ये लोग ऐसा ऐसा बोलते थे, वो सब अल्लाह को मालूम, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें क्या समझते हैं, इन्हें कैसा जवाब देते, उल्टे जवाब, वो सब अल्लाह ताला को मालूम है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, इन्हें ऐसा पूछते ही हमें मर जाती, मट्टी में दफन हो जाती, मट्टी मिट्टी हो जाती, क्या फिर दोबारा आपको खड़े थी क्या? हमें जिंदे होगा फिर खड़े थी क्या? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाता है, खुल कूनू हिजारतन औ हदीदा, जवाब दीजिए कि तुम पत्थर बन जाओ या लोहा। मट्टी से नहीं, तुम्हें पत्थर से बन जाओ, तुम्हें लोहे से बन जाओ। और खल्क़म मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या कोई ऐसी खिलकत जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही सख्त मालूम हो, घट्ट मालूम होने की। इंसान तो गोश्त से बना है, मट्टी से, अल्लाह पहले मट्टी से बना, उसके बाद गोश्त में बदल डाला उसे। ये नरम चीज है, जल्दी खा लेती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, तुम ना को ये चीज नरम जल्दी मट्टी में मिल जाती है करके सोचते ही नहीं क्या? तुम्हें चमड़े के गोश्त के नहीं, मट्टी के नहीं, तुम्हें पत्थर के हो जाओ, तुम्हें पत्थर के हो जाओ, या लोहे के हो जाओ, लोहे के हो जाओ, या अभी क्या तुम्हारे दिल में समझ में आता है अब ये चीज नहीं, ये घट्ट चीज करो, वैसे भी हो जाओ। तुम्हें कैसे हो गए? तभी क्या है उसका जवाब है, और खल्क़म मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या कोई ऐसी खिलकत जो तुम्हारे दिलों में बहुत सख्त मालूम हो। फिर वो ये पूछें कि कौन है जो दोबारा हमारी जिंदगी लौटाए, फिर भी उन्हों ऐसा घट्ट हो जा को आकर पूछते हैं, कौन हमला को फिर दोबारा जिंदा करने वाला। खुलिल्लज़ी फतरकुम अव्वल मर्रा, ऐ नबी आप इनको बोलो कि तुम्हें मट्टी के नहीं, पत्थर के नहीं, लोहे के नहीं, अभी खाते भी होकर भी आजा, लेकिन फिर तुमना को जिंदा करने वाला वही खुदा है जो पहले तुमको पैदा करा है। जब तुम्हें क्या भी नहीं थे, जब अल्लाह तुमने को पैदा करा है, पहली बार पैदा बनाना, डिजाइन बनाना, पैदा करना मुश्किल, लेकिन जब अल्लाह एक मर्तबा डिजाइन बना डाला है और इंसान बना डाला है, तो उसे मार कर फिर दोबारा जिंदा करना अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल है? पहली बात मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, तुम ना को पहले पैदा करना मुश्किल नहीं मेरे लिए, तो फिर दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल है? तुम्हारे से भी ये जमीन, ये आसमान, ये पहाड़ा, ये बनाना मुश्किल, इंसान की से भी बढ़कर ही, मोटे कितने बड़े ही, लेकिन अल्लाह फरमाता है वो इसे चीजें बनाना मेरे लिए क्या भी मुश्किल नहीं, मेरा एक हुक्म हो गया तो बन जाती, तुम्हारा क्या हिसाब, तुम्हें कहते हैं। उसके बाद फरमाया फसयुनगिज़ूना इलैका रूसहुम, अब ध्यान रखो, उस पर वो अपने सर हिला हिला कर आपसे दरियाफ्त करेंगे कि अच्छा ये है कब। तुम्हें अगर जवाब इनको देंगे इनको, तो यू नो छुड़ाई सर का, मजाक करे सर का, अच्छा वैसा क्या, अच्छा कब क्यों बोलो, अच्छा ऐसा। फसयुनगिज़ूना इलैका रूसहुम, ऐ नबी तुम्हारे सामने खामोश बैठ को सुनते नहीं, सिरा उछाल उछाल को हला हला, ओह वैसा क्या, ऐसा ऐसा एक्शन आकर कोई बात करती, वो भी अल्लाह ताला कुरान में बता दिया है। अच्छा कब क्यों बोलो, मर को जिंदा होती दोबारा, कब वो ऐसा आकर को पूछते हैं। कुल आसा अन यकून खरीबा, तो आप जवाब दे दीजिए कि क्या अजब है कि वो वक्त करीब ही हो। मुझे पता नहीं है, ऐ नबी आप बता दीजिए कि आपको पता नहीं है, हो सकता है करीब हो, करीब आया तो क्या करते हैं तुम्हें। अच्छा, यौम यदऊकुम फयस्तजीबून बिहम्दिही, जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तुम उसकी तारीफ करते हुए तामिल इरशाद करोगे। वह तज़ुन्नून इन लबिस्तुम इल्ला खलीला, और गुमान करोगे कि तुम्हारा रहना बहुत ही थोड़ा है।
जिस दिन अल्लाह खबरों से उठाएगा तो तुम्हें मैं आता नहीं, मैं जाता नहीं, तेरे को बोलने की चांस रहती नहीं। उस दिन बुलाते ही फटाफट खबर में से उठना, भागना। जैसा एक यजमान बुलाता है तो उसका नौकर कैसा भागता है उसके आड़ा बोले नहीं सर का, तो वैसा आती तुम्हें उस दिन। आज क्या क्या की सोचते हैं, तुम्हें क्या क्या की बोल लेते हैं, लेकिन उस दिन तुम्हें ऐसा आती। और क्या समझते हैं, कितने दिन हो गए दुनिया में, तो अरे हमें कितने दिन से दुनिया में, क्या कि भाई एक आधा घंटा हो गया इंसान। हालांकि 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल हो जाता है इंसान यहाँ से, लेकिन वहां क्या समझता है, मैं थोड़ी देर इतना टाइम थोड़ा टाइम रहकर आया हूं दुनिया से, आ गया हूं, मैं बहुत दिन नहीं था दुनिया में, ऐसा समझते हैं। उसके बाद फरमाया वकुल इबादी यकुल्लती ही अहसन इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम इन्न शैतान कान लिल इंसान अदुव्वन मुबीना। और मेरे बंदों से कह दीजिए, ऐ नबी आप मेरे बंदे यानी इंसानों से आप कह दीजिए, कलमा पढ़ने वाला भी अल्लाह का बंदा है, कलमा नहीं पढ़ने वाला भी अल्लाह का बंदा है, सबको भी अल्लाह पैदा कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ नबी आप मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत अच्छी बात मुंह से निकाला करें। मुंह से क्या तो बोले तो अच्छे बातें करो, काम सो बेकार बातें करो नको, क्या तो बोलते हैं तो अच्छे बातें बोलो, क्योंकि शैतान आपस में फसाद डलवाता है। शैतान क्या करता है, तुम लोग आपस में लड़ाता है, फसाद डलवाता है, बिगाड़ पैदा करता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। शैतान का काम क्या, समझने देता नहीं, उसे समझने देता नहीं। उस वक्त का माहौल क्या था हमें जानते हैं, कई बार सुने क्या था माहौल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में आपको अल्लाह नबी बनाया तो उन्होंने फतरों को पत्थरों के मूर्तियां बना लेते थे, उनकी पूजा करते थे। उन्हें वो देवी, उन्हें ये खुदा, उन्हें वो देवता, वो जैसे यहाँ हिंदुस्तान में देवियां के नामा ही, तो वहां भी नामा रख लेते थे उन्होंने। अल्लात एक देवी का नाम, अल मनात, अल उज्जा, ऐसे 3 बड़े बड़े देवा यहाँ ही नहीं, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती 3 जने। तो वैसा वहां भी उन्होंने 3 रख लेते थे बड़े बड़े नाम, उनके नामा में अल्लाह कुरान में बोला है अफरायतुम लात वल उज्जा व मनात सालिसतल उखरा। लात मनात उज्जा ये 3 बड़े बड़े देवियां थे, अभी ऐसे बना लेकर थे। उन्हें क्या समझते थे कि इनके पास कुछ ताकत है, कुछ पावर है, इन्हों कुछ कर सकती। ये बयान हमें अलग बार सुने ही, लेकिन जब कुरान की तफसीर में है तो हमें कितने बार सुने तो अल्हम्दुलिल्लाह हम को होता है, ईमान भी ताज़ा होता है और सवाब भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बारे में अल्लाह फरमाता है रब्बुकुम आलमु बिकुम इन यशा यरहमकुम औ इन यशा युअज़्ज़िबकुम वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला। ऐ नबी इनसे बोलो, क्या बोलो कि तुम्हारा परवरदिगार तुमना को अच्छा जानता है, तुम्हें कौन क्या, तुम्हें क्या सोचते हैं, तुम्हें क्या करना करको चाहते हैं, वो पूरा अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह को मालूम है। तुम्हारा रब तुमसे बनिस्बत तुम्हारे बहुत ज्यादा जानने वाला है। मेरे बारे में मैं कितना जानता हूं कि मेरे बारे में मेरे से ज्यादा अल्लाह को मालूम, मेरे बारे में मुझे कम मालूम मेरे बारे में। अल्लाह ये बात समझाता है, तुम्हें तुम्हारे बारे में कितना जानते हैं कि तुम्हें कौन क्या किधर कैसा, अगर को तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारे बारे में अल्लाह जानता है। कहीं को पैदा करने वाला उन्हें है। अच्छा, वो अगर चाहे तो तुम पर रहम कर दे, या अगर वो चाहे तुम्हें अजाब दे दे। अल्लाह चाहे तो रहम भी कर सकता है, अल्लाह चाहे तो अजाब भी दे सकता है। तुम कौन भी अल्लाह के रहम से दूर करने वाले भी नहीं और अल्लाह के अजाब से बचाने वाले भी कौन भी नहीं। हमने आपको उनका जिम्मेदार ठहरा कर नहीं भेजा। ऐ नबी तुम्हारा काम सुनाना है, समझाना है, तुम्हें क्या भी जिम्मेदार नहीं। उन्होंने सुनना सब तुम्हारी जिम्मेदारी, उनको उन्हें ईमान लाए सरकार करना, लाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारे ऊपर सिर्फ वजन ऐसा क्या भी नहीं है। आपका काम तो क्या है, बस सुनाना है, समझाना है, पहुंचाना है। सुने तो सुनने जाओ, नहीं सुने तो छोड़ो, कोई बात। अब यहाँ एक बात आती है, वो बड़ी अच्छी है, मतलब 2 टॉपिक है उसमें, वो 2 टॉपिक बोलकर बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। वरब्बुका आलमु बिमन फिस समावाति वल अर्ज़
आसमान और जमीन में जो भी है आपका रब सब खूब बखूबी जानता है। आसमानों में क्या है, जमीन में क्या है, सब अल्लाह को मालूम है। अल्लाह को मालूम है, सो कोई सी भी चीज उसके इल्म से बाहर नहीं है। वलक़द फज़्ज़लना बाज़न नबीय्यीन अला बाज़िन व आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने बाज़ पैगम्बरों को बाज़ पर बेहतरी और बरतरी दी, और दाऊद को जबूर हमने अता फरमाई। दाऊद अलैहिस्सलाम को किताब भी हमें दिए ही, तो उनकी किताब के बारे में अल्लाह का इसमें जिक्र करा है। और पैगम्बरों को मैं भेजा हूँ, बाज़ पैगम्बरों को बाज़ पैगम्बरों पर फजीलत दिया हूँ, उनका भी मर्तबा बढ़ा भी करा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जो लोग वो खुदाओं को खुदा के ऐसा बना ले को फतराओं को पूछते थे, पूजा करते थे, तो उनके बारे में अल्लाह क्या फरमाता है, खुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, कह दीजिए आए नबी इनको बोलो, ये मक्के वाले सबको बोलो, क्या बोलो, अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम माबूद समझ रहे हो उन्हें पुकारो। अल्लाह को छोड़कर हमें इनकी इबादत करना समझते, बुलाओ उनको, तुम्हारी मुसीबत को दूर करने, परेशानी दूर करने पुकारो। लेकिन ना वो तुमसे किसी तकलीफ को दूर कर सकते हैं और ना बदल सकते हैं। तुम ना आते से तकलीफ को तुम दूर भी कर सकते नहीं, और तुम ना को बदला, वो हालत को बदला भी सकते नहीं, बुरी हालत को दूर भी कर सकते नहीं, बुरी हालत बदला को अच्छी हालत ऐसा का इन्हें कर सकते भी नहीं, इनकी ताकत क्या भी नहीं है। अच्छा, उलाइका लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतह व यख़ाफ़ूना अज़ाबह इन्न अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा। हाँ, ये आयत में एक बात आई है, वो बात मैं आपको बताता हूँ। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं खुद वो अपने रब के तक़र्रुब की जुस्तजू में रहते हैं कि उनमें से कौन ज्यादा नजदीक हो जाए, वो खुद उसकी रहमत की उम्मीद रखते और उसके अजाब से खौफज़दा रहते हैं। बात भी यही है कि तेरे रब का अजाब डरने की चीज ही है। अच्छा, अब यहाँ एक बात बताए, वसीला आकर को एक लफ्ज आया है कुरान में, वसीला का तो क्या। अच्छा, यहाँ जो बात बताई गई है वो बात बताकर हमारे मुसलमान ये आयत को लेकर जब कंफ्यूज में ही, तो वो भी मैं आपको समझाता। तो यहाँ क्या बात बताई गई है, वो जमाने में जरा नेक अदनाम भी थे, अल्लाह के नेक बंदे पुराने जमाने में, तो उनके भी बुता बना लिए थे, उनको भी खुदा समझते थे। या जिन्नाता को भी, शैताना जिन्नाता ही ना, तो वो जिन्नाता को भी खुदा समझते हैं और उनकी इबादत करते हैं। लेकिन चंद जिन्नाता क्या करे ही, उन्होंने ईमान ला करो ईमान वाले हो गए, जिन्नाता में भी जरे ईमान वाले हो गए ही। इन्हें क्या समझते ही, उन्होंने हमारे खुदा, उन्होंने हमारे खुदा कर को इन्होंने समझते ही। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें उनके पीछे पड़े ही, किसके पीछे है, वो जिन्नाता के पीछे। लेकिन वो जिन्नाता जो ही उन्होंने ईमान ला ले ही, और उन्होंने क्या सोचते ही, हमें अल्लाह के करीब होना, उन्होंने आपस में इधर के जरे जिन्नाता उधर के जिन्नाता ही, ये जिन्नाता में से इन्होंने क्या सोचते हैं, उनसे भी मैं जल्दी अल्लाह के पास मर्तबा पाना, नेकियां हासिल करना, अल्लाह के करीब होना, इन्हों उनसे बढ़को इनसे बढ़को। जिन्नाता की हालत यह है, इन्हें क्या सोचते हैं, हमें इनको पकड़ लेंगे, इन्हों हमारे खुदा को इन्हों सोचते हैं। हालांकि उन्होंने अल्लाह के पास वसीला पकड़ते हैं, वसीला। अब ये लफ्ज लेकर हमारे मुसलमानों में एक बहुत बड़ा ग्रुप क्या है, वो ये वसीला होना, वसीला दुआ करते इस टाइम पर, या अल्लाह हमारे दुआ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमा, तेरे नबी के तुफैल से कबूल फरमा, तेरे नबी के वसीले से कबूल फरमा। ये एक बहुत सारे मुसलमान इस बारे में पढ़े हुए। अब यहाँ दो बातें हैं, वो दो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये हमारे दरगाह पार्टी जो भी है, फातिहा दिलाना, खबरान के पास जाना, दरगाह के पास जाना, उन्होंने सब क्या समझते हैं, ये बात हमें इसके पहले भी सुने हैं, लेकिन फिर भी आज उसे कनेक्शन के लिए, ताज़ा करने के लिए बताता हूँ। भाई हमारा क्या तो भी काम होना, कलेक्टर के पास जाना, हमें जा सकते हैं क्या, तो हमें यहाँ किसी से भी एक सरपंच को कि एक एमएलए को बुला लेते, तो
वहां जाकर उन्हें हमारा काम करा को देता है, हम लोग को आने देता है कि आने देता नहीं, हमारी बात सुनता नहीं, इसे बुला लेंगे। तो इसके बाद से इन्हें हम लोग को रिकमेंडेशन करके वसीला बीच में इन्हें इसे वसीला पकड़ना, इसका तुफेल इसका वसीला पकड़े तो काम होता है। वैसा अल्लाह के पास भी हमें बुरे आदमियां गुनहगार अल्लाह हमारी बात सुनता है कि नहीं की दुआ, उसके वास्ते हमें वलियां का वसीला लेना, तुफेल से लेना, उनका वसीला उनका तुफेल लेको दुआ करना करको उनो महबूसवानी के वसीले से, खादर अली के, नागुर वली के और फिर अजमेर वाले खाजा के, ये वलियां के वसीले। वो ग्रुप के भाइयां हमारे वैसे ही, तबलीगी जमात के भाइयां कैसे ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला लेना, उनके सब भी नहीं, हमें इनका वसीला लेना दुआ में। जितने भी इज्तिमा होते हैं, दुआ होती है, दुआ में लास्ट में उन्होंने दुआ हमारे सब के सब दुआओं को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफेल से कबूल फरमा, उनके वसीले से कबूल फरमा, ये दुआ करते हैं। हालांकि ये दोनों भी गलत है। कई को गलत है, वसीले का माना क्या, तुम लोग को पहुंचाने वाली चीज क्या है उसे पकड़ो, कहता है अल्लाह ताला। हम लोग को अल्लाह से करीब पहुंचाने वाली चीज क्या, नमाज है। हम लोग को अल्लाह से करीब करने वाली चीज नमाज है। नमाज पढ़ को अल्लाह के करीब हो, दुआ कर को अल्लाह के करीब हो, कुरान पढ़ को अल्लाह के करीब हो, अल्लाह की इबादत कर को अल्लाह के करीब होना, वसीला वो चीज को पकड़ना। सो उसी चीज को, हमारी इबादत को, हमारी इबादत से हम लोग अल्लाह के करीब करती है, हमारी इबादत के बदले अल्लाह हम लोग को जन्नत में भेजता सो अपने रहमो करम से और हमारी इबादत। तो ये बात समझे बगैर अब उन्होंने क्या बोलते हैं, तुम्हें क्या बड़े आलिम, उनको सब बड़े बड़े आलिम समझ में आया नहीं, क्या समझ में आया नहीं, क्यों? इसलिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती में ही, क्या गलती में ही, ये वसीले की बात जब भी आती है उन्होंने एक हदीस पेश करती। कौन सी हदीस है? अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, पैदा करने के बाद वो फल खाना को जन्नत में खा लिए, उसके बाद उन्होंने दुआ करे, या अल्लाह मेरी दुआ को मोहम्मद के तुफेल से कबूल कर को, वसीले से कबूल कर को दुआ करे। तो अल्लाह पूछा आदम अलैहिस्सलाम को, आदम ये मोहम्मद का तुफेल लेकर तुम्हें दुआ करे ना, तुम लोग को क्या मालूम उनके बारे में, क्या जानते हैं तुम उनके बारे में? तो इन्होंने बोले, क्या बोले, अल्लाह तू मुझे पैदा करने के बाद मैं तेरे अर्श के ऊपर देखा तो वहां लिखो था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कर लिखो था, तो मैं समझा तेरे नाम के बाजू में, अल्लाह के बाजू में मोहम्मद कर नाम है तो अर्श के ऊपर है, तो इन्हों कौन की बड़ी बुजुर्ग हस्ती रहती, बुजुर्ग हस्ती है, उसके हाथ से मैं तुफेल से दुआ मांगे। तो अल्लाह ताला क्या बोला, अच्छा जाओ मैं तुम लोग को माफ कर दिया। ये किस्सा फज़ाइल अमल में भी है, लिखो है, अरबी में लिखे ही, उसका तर्जुमा करे ही, लेकिन उसके नीचे अरबी में चुनस लिखे ही हाजा हदीसुन मौज़ूउन, ये झूठी हदीस है कि लोग लिखे हैं, लेकिन तर्जुमा करें उर्दू में तर्जुमा करें, वहां हिस्सा तक हुए तक लिखे ही, वह दिखा तो होना है, तो हिस्सा चला सो है ना, वहां तक लिखे ही, उसके बाद उन्हें से लिखी, उन्होंने दूसरी किताब से लिए ही ना, ये हदीस है, ये हदीस झूठी है, मौजू के माने झूठी, मन घड़त बना को बोल डाले, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं, तो कौन की बना को बोल डाले ही, वो अरबी में लिखी, वो अरबी में लिखे ही, लेकिन उसका तर्जुमा उर्दू में करे नहीं, छपा डाली। तो एक बात तो क्या है, यह हदीस झूठी है, गलत है। और कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, जब आदम अलैहिस्सलाम से वो गलती हुई, कौन सी, फल खानों को तो खा लिए, तो आप शर्मिंदा हो गए, आपका लिबास उतर गया, तो उसके बाद अल्लाह फरमाता है फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, तो अल्लाह ताला से आदम अलैहिस्सलाम चंद कलिमात लिए, अल्लाह दिया उनको, क्या दिया, माफी मांगने का तरीका, वो अल्फाज सिखाया अल्लाह। कौन से अल्फाज? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, हमें दो जने भी आदम और हवा करना नहीं सो काम करे ही, जुल्म करें अपने आप पर, तो फल खानों को तो हमें खा लिए ही, अगर तू माफ करे नहीं और रहम करे नहीं तो हमें नुकसान वाले में हो जाती। ये अल्फाज अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को दिया, वो कुरान की आयत है,
सूरह आराफ के अंदर वो आयत है। तो ये बात उन्हें दुआ करे, ऐसा दुआ करे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। दुआ इन्हें पूछे, अल्लाह से मांगे, तो अल्लाह करे अच्छा जाओ मैं माफ़ करता हूँ। ये कुरान में है। ये आयत का माना जब मतलब पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो दरगाह पार्टी वाले भी ओस लिखते हैं, तबलीग वाले भी, जमात वाले ओस लिखते हैं, उसके साथ साथ इसे भी जमा लेते हैं ये झूठी हदीस को। कौन सी? अल्लाह वो अल्फाज दिया अगर को कबूल लेते हैं, मान लेते हैं, उसके साथ साथ हमारे नबी के तौफील से दुआ करे कर बोल ये झूठी हदीस जोड़ लेते हैं, बयाना में सब बोलते हैं, हालांकि ये हदीस झूठी है। उन्होंने लिखी हाजा हदीस मौजू, ये हदीस मौजू, झूठी हदीस कर उन्होंने लिखे। अच्छा, सही हदीस में क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के अर्श के ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा है। सो ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ लिखो है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए तो वहां एक बड़ा झाड़ देखे, सिदरतुल मुंतहा, बड़ा झाड़, वो झाड़ के पत्तियों पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। कहाँ लिखा था? झाड़ के पत्तियों के ऊपर लिखो था। और अर्श के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सबखत रहमती अला गज़बी और कमा खलल। अल्लाह क्या लिखा है? मेरे गुस्से से भी मेरी रहमत ज्यादा है। अल्लाह का गुस्सा इंसान के पर आया तो बुरे काम करे तो उसे सजा देना ना इंसान को, लेकिन मेरे गुस्से से भी मेरी रहमत आगे चल जाती है, आगे जाकर उनको माफ कर डालती है, मेरी रहमत लपेट लेती है, मैं उनके गुनाहों का बदला देने का उनको माफ कर डालता हूँ। और ये लिखा हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ये सही हदीस के अंदर है, ये सही हदीस के अंदर है। उन्होंने पढ़ते हैं मालूम, लेकिन ये एक परेशानी उनको, उनके बुजुर्गों का तो बोल रहे तो वो गलत है तो भी मान लेना, वो चलती रहना गाड़ी, तहकीक करना, सोचना, समझना, मालूम कर लेना, सही बात के ऊपर अमल करना, वो नहीं है। तो ये एक बात हुई, कौन सी? अर्श के ऊपर वो लिखा हुआ नहीं है, अर्श के ऊपर ये लिखा हुआ है। दूसरी बात जो मैं आपको सुनाया, ये दरगाह पार्टी वाले भी बरेलवी हजरात कहते हैं, उनको नाम बरेलवी ग्रुप पार्टी उनकी, दरगाह पार्टी वाले उन्हें सब क्या बोलते, ये एक कलेक्टर का जाना था, हम जा सकते हैं क्या? सरपंच के एमएलए को पकड़ लग गया तो हमारा काम होता है सारा। हालांकि वो मिसाल उनकी गलत है, दुनिया के हिसाब से करेक्ट है। क्यों? मैं कलेक्टर के पास जाता हूँ, मैं कौन उसे मालूम नहीं, मैं क्या काम से गया था उसे मालूम नहीं, मैं किसका बेटा उसे मालूम नहीं, मेरा कोसा गाँव उसे मालूम नहीं। इन्हें बोला तो मालूम होता है, ये सरपंच की, एमएलए की, जाको भाई इन्हें हमारे इलाके का आदमी, इन्हें फलाने का बेटा फलाने काम से आया है, इसकी फलानी जरूरत है, तुम्हें पूरी करो, तो इन्हें बोला तो उसे मालूम होता है, तो मालूम होता नहीं। अब वैसा इन्हों जो दरगाह पार्टी वाले पकड़ को बैठे हैं, वलायन के तुफेल से जाना है, वलायन के तुफेल से, नबी का तुफेल भी, वलायन के भी तुफेला। तो जिस वली के तुफेल से जाते हैं वो वली तो इंतकाल हो गए। पहली बात, कलेक्टर करने जाना हो तो मुर्दे के तुफेल से जाते नहीं हो, जिंदे आदमी को बुला जाते हैं। जब अल्लाह के पास जाना है तो जिंदे आदमी से दुआ कराओ, जिंदे आदमी से दुआ कराओ। हजरत के जाओ, हजरत तुम्हें 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, तुम्हें हाफिज साहब, मौलवी साहब, मेरे हक में जरा दुआ करो, और बोलो। लेकिन वहां क्या करते हैं? उनके तुफेल से कबूल कर हमारी दुआ को, ये वलियां के तुफेल से, हालांकि वो गुजर गए हैं, और वो गुजर गए से वली को मैं कौन की मालूम नहीं, उनकी खबर में उनकी हालत क्या है कि अल्लाह उनके हिसाब से उनके इसमें ही उनकी हालत कैसी है हमने मालूम नहीं। हमें फिर भी उनसे एक अच्छा गुमान नहीं, अल्लाह उनको आराम से रखा रहता है नेक आदमियों को, हमें कौन भी उनको मालूम नहीं। अब उन अल्लाह से पूछने के लिए भी उन्होंने दूसरी दुनिया में ही अल्लाह से उन्होंने बात कर सकते नहीं, पूछ सकते नहीं, दुआ भी कर सकते नहीं, इतनी बात उनको समझ में आती ना है। फिर एक एतराज करती, वो एतराज का भी हजरत उमर भी दुआ करे ही, वसीले से दुआ करे ही, हदीस में है ना, है क्या दुआ करे ही? एक बार बारिश की कमी हो गई थी, तो बारिश के लिए
हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये वाक़या बोल के बात खत्म कर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या करे हैं, बारिश के लिए हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल हो जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना 2 साल का, वो उनका जमाना 2-2.25 साल का जमाना होने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जब खलीफा बने, मुसलमानों के हुक्मरान बने, तो वो जमाने में बारिश की कमी है, तो जब इन्होंने हजरत अब्बास रजी अल्लाह को ले जाकर बिठाए और दुआ करे, अल्लाह जब तक हमारे नबी थे जिंदा तो उनसे हमें दुआ कराते थे, जाको या रसूलुल्लाह दुआ करो कर बोलते थे, अब हमें उनकी चिच्चा को लाए हैं इनसे दुआ कराने के लिए, अल्लाह तो इनकी दुआ तो भी कबूल कर ना बारिश दे अल्लाह को। गए तो बाद में हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला दुआ करे, उन्हें जिंदा थे, दुआ करे, पीछे से उन सब लोग दुआ करे, उसके बाद अल्लाह ताला बारिश दिया। अब इतनी आसान बात, कितनी आसान बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, हजरत उमर क्या करना था, या अल्लाह हमारे नबी के तुफैल से बारिश देकर बोलना था। नबी से बड़े कौन नहीं ना दर्जे में, मर्तबे में, लेकिन नबी इंतकाल हो गए, उन्हें जानते हैं, क्या समझते हैं, नबी इंतकाल हो गए, हमें उनकी खबर करने जाको, हजरत तुम्हें दुआ करो, अल्लाह का नसीब करो, तो उन्हें दुआ करते नहीं, उन्हें उनकी दुनिया में ही, उन्हें आराम में ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दुनिया में ही। हमारी बात उनको मालूम होती नहीं, हमें हाँ जा क्या बोले तो भी, हमें कौन गया है, क्या वास्ते गया है, क्या इरादे, उसको मालूम होता नहीं। उसके वास्ते उन्होंने क्या करे हैं, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले जाको दुआ कराई, उसमें है वसीला, उनका वसीला। हाँ हमें बोझ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाओ किसी तो हजरत के पास जिसे तुम्हें नेक आदमी समझते हैं, दुआ करा ले उनको, बोल को तुम्हें खुद दुआ मांगो भाई, अल्लाह हर इंसान की दुआ कबूल करता है। गुनहगार से बड़े, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार भी अल्लाह के सामने रोक दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल करता है। मैं किसकी भी दुआ कबूल करता नहीं कर अल्लाह कभी बोला नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले हैं, उस आदमी की दुआ कबूल होती नहीं जो रात दिन हराम खाता है, हराम पहनता है, कपड़े हराम के माल से कमा को खाता है, उसकी दुआ कबूल होती नहीं। बाकी के बुरे काम करने वाला हो, गुनाह के काम भी करने वाला है, तो अब उन्हें रोक दुआ करके अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करते, उसके गुनाह को माफ करता है। अल्लाह हर एक की दुआ को सुनता है। और सबसे बेहतर क्या, अपने बाप से दुआ कराओ, अपने बाप से दुआ, अब्बा मेरे हक में दुआ करो। क्यों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं कि बाप की दुआ बेटे के हक में जरूर जरूर कबूल होती है। अम्मा से दुआ करो, अम्मी तुम्हें नमाज पढ़े मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छा रख, मेरे बच्चे को अच्छी कमाई दे, हाँ पैसे दे, दौलत दे, इज्जत दे, बीमारियों से बचा, मेरे बच्चे को अच्छा रख, सुकून की जिंदगी दे, दुआ करो। अम्मी करो, अम्मी से दुआ करो। माँ बाप से बढ़कर दिल के दर्द से दुआ करने वाले कौन है दुनिया में। हजरतान के पास भी जाओ, तुम्हें दुनिया में किसके पास भी जाओ, लेकिन जिस दर्द से, जो माया मोहब्बत से माँ बाप दुआ करते अपने औलाद के हक में, उनसे बढ़कर कौन भी अच्छा दुआ करने वाला नहीं। तो उनके लिए दुआ करो, उनके पास दुआ करो, अगर उन्हें जिंदे हैं तो। अगर उन्हें जिंदे नहीं, तुमना को अगर किसी से दुआ करा अगर है तो तुम्हें जिसे नेक आदमी समझते हो उसके पास जाकर दुआ करो, जिंदे से, मरे हुए आदमी से नहीं। ये वसीला वसीला वसीला। और क्या बोलते हैं लोग, हमें घर पर चढ़ना तो चढ़ सकते हैं क्या भाई, सीढ़ी डालने को चढ़ना वसीला नहीं क्या, वैसे अल्लाह का नहीं जाना तो भी हमें कहा तो वसीला, हमें बोलते हाँ वसीला होना, किसका वसीला, नमाज का वसीला, नमाज पढ़ो, ये वसीला। जैसा तुम्हें घर के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी डाल कर चढ़ते हैं, वैसे अल्लाह के पास जाने के लिए नमाज पढ़ कर जाओ। ये चीज तुम पहुंचाती है, ये नमाज तुम को अल्लाह के पास पहुंचाती है। कुरान पढ़ो, कुरान अल्लाह के पास तुम पहुंचाता है। एक कलाम, रोजा रखो, रोजे तुम पहुंचाते हैं। हदीस के अंदर आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन ये कुरान आकर सिफारिश करेगा, कुरान पढ़ने वाले के हक में आकर खड़ेगा और कहेगा कि अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था, इसे कुरान पढ़ता था, रात में नमाज में पढ़ता था, तहज्जुद में पढ़ता था, खाली से बैठ कर पढ़ता था, तो इसे माफ कर तक मैं जाता नहीं, अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल कर बोल को उसकी सिफारिश कबूल करा को जाता है कुरान। और रोजा भी आकर खड़े हो जाता है, अल्लाह मैं इसे खाने पीने से रोक कर रखा था,
जायज ख्वाहिशात से रोक कर रखा था, मना करके रखा था, तो आज मेरी सिफारिश कबूल कर अल्लाह ये बंदे के हक में। कौन रोजा रहता है कि वो रोजेदार के हक में। तो नबी साहब फरमाते हैं कि रोजेदार को उसका रोजा और कुरान पढ़ने वाले को कुरान मजीद आकर के सिफारिश करती हैं अल्लाह के पास है। तो ये चीज वसीला, इसे पकड़ो, कुरान पढ़ो, नेक अमाल करो, नमाज पढ़ो, ईमान, और ईमान के वजह से इंसान जन्नत में जाता सो। तो ये पकड़ो भाई वसीला तो जरिया। तुम्हें दुकान में जाकर कहते हो लेना तो क्या होना, पैसे होना, पैसे नहीं इसका कैसे हो सकते हैं भाई। माउसवानी वसीले से एक मोटा चावल देकर बोलो देते क्या कि दुकान वाला देता है, इंसान ही सुनता नहीं। माउसवानी वसीले से 100 केजी गोश्त दे भाई, मेरी शादी को, मेरे बच्चे की शादी है, मेरी बहन की शादी है, उनके वसीले से जो देता है ना, जाओ जी भले आदमी पैसे लाओ जी पहले कहता है। नहीं कौन तो भी जिंदा आदमी रहे तो जाकर बोल सकता है भाई मामू जरा बोलो मामू, तो मैं मेरे पास पैसे नहीं बाद में देता हूँ, तुम्हें तो आके बोलोगे तो उन आग बोल सकती भाई उनको 50 किलो गोश्त 100 किलो गोश्त दो, 8 दिन 10 दिन में दे आती, महीने में दे आती, उन्हें दिए तो मैं दे दूँ भाई। पर इन्हों तो भी बोल सकती, कौन है जिंदा आदमी। मर गए आदमी क्या बोल सकती वहां कर, उन्हें बोल सकते नहीं। आज तक कौन भी दुनिया में ऐसा काम कराया नहीं। कौन सा काम जिंदगी में होना सो काम को जिंदगी आदमी को लिया इस्तेमाल कर लिया है। माउसवानी के वसीले से मुझे गोश्त देकर बोला नहीं, माउसवानी के तुफेल से, यानी तो हमारे नबी के तुफेल से 1 लाख रुपए दो पूछा नहीं कौन भी। दूसरे आदमी जिंदगी आदमी बुला लेके आता है दुनिया के काम को, आखिरत के काम को अल्लाह के बारे में आया तो वहां बोले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुफेल ये पकड़ लेते। हालांकि ये तरीका सही नहीं है और ये सोच भी सही नहीं है। क्यों? अल्लाह हम लोग पैदा कराया है, मुझे जानता है, मेरे बाप को जानता है, उनके बाप के तो सारी दुनिया को जानता है अल्लाह, हमारे दिल को भी जानता है। वह अलीम भी जाती सुदूर, तुम दिल में क्या सोचते हैं वो भी जानता है, दिल में क्या सोचते हैं वो भी अल्लाह जानता है। और हमारी शहरत से करीब है, शहरत का तो ये गले में जो रग है ना, बड़ी मोटी रग, उससे भी ज्यादा करीब है। नान अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, उससे ज्यादा करीब है। और वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी। ऐ नबी, जब इन्हें आकर पूछते हैं अल्लाह के बारे में, मेरे बारे में पूछते हैं कि अल्लाह कहाँ है, कैसा सुनता है, तो आप इनसे बोलो कि मैं उनसे करीब हूँ। जब भी मुझसे दुआ करता है कोई भी इंसान, मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ और उसकी दुआ को मैं पूरी करता हूँ। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, तो अल्लाह फरमाता है मेरे ऊपर ईमान रखो और मेरी बात के पर तुम्हें आओ। इस फलयस्तजीबू ली मतलब मैं बोलता हूँ, अल्लाह बोलता नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह की बात तुम्हें मानो और मेरे पर भरोसा रखो। अल्लाह कुरान में ऐसा बोला है। लेकिन अब अल्लाह तौफीक देना। एक बड़े दर्द की बात खत्म करेंगे। क्या दर्द की बात है? जिनके पास कुरान नहीं है, किताब नहीं है, हदीसा नहीं, वैसे लोग अगर गलत रास्ते में जाते हैं या बेसमझापना करते हैं, नादानी करते हैं तो अलग बात है। लेकिन जिनके पास अल्लाह की किताब, खुल्लम खुल्ला अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद है, हदीसा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और सही वाक़ियात ही, ये सही चीज़ों को छोड़कर जो चीज़ें सही नहीं है, गलत चीज़ें हैं, उनके पीछे पड़कर भागते जा रहे हैं। एक तरफ जनरल पब्लिक भी, आवाम भी वैसे हैं, आवाम को तो मालूम नहीं है। एक तरफ आलिमा, जो लोग 8-8 साल मदरसे में पढ़ते हैं, वो लोग भी समझने के लिए तैयार नहीं है। वो भी आंखें बंद करके हमारे हजरत कैसा बोले, हमारे बुजुर्ग कैसा बोले, सुनते चले जाते, समझने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कौन तो भी बोल को समझा को कोशिश करे तो उन्होंने अहले हदीसा, उन्होंने नबी को मानते नहीं, ओलिया को मानते नहीं, इस तरह के बहाने कर को चले जाते, मानने के लिए तैयार नहीं। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह परवरदिगार रब्बुल आलमीन सारे मुसलमानों को नेक तौफीक अता फरमा, और मुसलमानों में सबसे पहले आलिमों को अच्छी समझ और नेक तौफीक अता फरमा। कुरान मजीद को सारी ज़िंदगी पढ़ने, सुनने, समझने, याद रखने और उसके
अहकाम के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।